name is Komal Pandey and I'm assistant professor over here in Sanskriti University from School of Rehabilitation. And today we are going to talk about Individualized Education Program. As you can see my screen, you can see the child over here, you can see the child over here, and you can see the child. But there is something which is we can notice over here, and that is something that these childs are the special child. So today we are going to talk about that for the special child, how we design the curriculum, how we design the plan for them that they can be capable for reading, learning, and for the academic structure, right? So today we are going to learn about something called Individualized Education Program. So as the word says, Individualized Education Program, so that is something individualized is purely for the single person. That is for the single person. I'm sorry, this is not all right. So individualized is actually for the single person, for the single child, where we only focus on one children which is having some disability or some special needs which needs to be occur or identified by the special educator or the class teacher, right? When I said the class teacher, because earlier we cannot identify the disabilities which are hidden in the child. So for that matter, we need the early identification for the child so that we can resume the cultural activities, resume the abilities of the child which he or she can able to do in the classroom, right? Let's just move to the next screen. That is the brief of education program. Just give me a second, right? All right. So let's just learn about what it says, that Individualized Education Program is also called IEP. That is a written plan that is developed for the children with special needs who requires the modification for the regular school program and the accommodation. So when we say these two words, that is modification and accommodation, so modification is purely means that where the child need modification. It can be in the environment, it can be in the classroom, it can be in the academic session, and it can be the regular life of the child, the social life of the child, right? And so here we talk about the series of the modification which we need in the child's abilities. So लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक बच्चा है जिसकी हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से क्या किया है, हमने उसको पहचान करी है कि उस बच्चे को हमें कुछ एलडी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और वी कैन से द चाइल्ड इज ADHD. I hope you all know what is LD and ADHD. LD is referred to learning disabilities and AD is attention deficit hyper disorder, which we generally see in the regular schools, in the inclusive schools. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट चाइल्ड. अगर उस बच्चे का हमें पता चलता है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, he may face some problems in writing or reading, so we can assume the child that he is facing some problem in writing. So in the writing, what kind of modification he needs? Maybe he needs some bigger letter to understand what is written over here. Maybe he needs some pronunciation help which the special educator and the educator can provide him, right? Also, we some need the modification that if the child is facing some confusion between the words. I hope आप लोगों ने तारे जमीन पर देखी होगी, जहां पर ईशान अवस्थी को आपके B and D के बीच का फर्क नहीं समझ आता था. So that is something which covers under the learning disabilities, under the specific disability, that is dyslexia, in which the child actually faces the reading problem. He does not understand what is written over here and he just face the problem कि वो पहचान ही नहीं पाता है उसके आसपास ये सारे शब्द क्या हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, right? So these kind of modification we can provide. ईशान अवस्थी in the movie, जैसे आपने देखा था कि वहां पे सारे बड़े बड़े अल्फाबेट से हमने स्टार्ट किया था, so that the child can identify the word कि वो actually में word है क्या, and then slowly and gradually हमने उसको क्या किया, रेगुलर बेसिस पे उसको लाना, इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया. So अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे आईईपी का क्या रोल है. आईईपी का रोल ये था कि मैंने जब अपने ईशान अवस्थी को देखा कि दैट ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम इन द रीडिंग, तो मुझे एक गोल मिला एंड मेरा मेजरली फोकस किस पे है, एक इंडिविजुअल पे. इंडिविजुअल कौन है, मेरा ईशान, राइट? और मैं वहां पे क्या प्लान कर रही हूँ,
मैं वहां पे प्लान कर रही हूँ कि मुझे ईशान के लिए कौन सी चीजों पे कैसे काम करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर क्लास में क्या करना है, या फिर ईशान के साथ जो राहुल है या फिर कोई और बच्चा है वो कैसे काम करेगा। नो, आई एम जनरली फोकस्ड ऑन ओनली ऑन ईशान पे। और ऐसा मैंने क्यों किया है? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर ओनली द पर्सन हु इज फेसिंग द स्पेशल नीड्स एंड फॉर द इंडिविजुअल ओनली। जो हम ग्रुप के लिए करते हैं दैट इज लेसन प्लान, बट जो हम एक इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं दैट इज समथिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। So let's come back to the ईशान again. उसकी रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है एंड रीडिंग इज अगेन कनेक्टेड टू दी योर एजुकेशन पार्ट, राइट? बिकॉज अगर आप रीड नहीं कर पाओगे तो आप उसके आगे की चीज को समझ नहीं पाओगे, एंड अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे तो आप फिर उस बारे में लिख नहीं पाओगे, एंड जब आप लिख नहीं पाओगे तो देयर यू फेस द प्रॉब्लम कि आप अपने आप को लैग बिहाइंड करने लग जाओगे। यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील डी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ सारे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट लाइकिंग द थिंग्स कि आप कैसे पीछे आ गए, राइट? So for that matter, we develop the individualized education program so that आप क्या हो, आप सबके साथ चल पाओ। So as it says, it's work on the flexible working documents. Okay, मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो I do not have to show him कि आप क्या कर रहे हो, आपको पढ़ना नहीं आता है। That is something कि मैं flexible working document पे काम करूंगी। When I said कि मैं flexible working document पे काम करूंगी, so I'll just rapport build with ईशान, rapport build with my special child कि मेरे को उसके साथ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फर्स्टली मैं उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करूंगी। बॉन्ड क्रिएट करने के बाद उसके जितने भी हर्डल्स हैं हम दोनों क्या करेंगे, उसको एक साथ ओवरकम करेंगे। एंड जब हम उसको एक साथ ओवरकम करेंगे देन क्या होगा कि वो बच्चा मुझसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ही विल फेस सम हेजिटेशन इन द इनिशियल, देन उसके बाद वो क्या करेगा, मेरे से कंफर्टेबल होकर चीजों को करना स्टार्ट करेगा एज इन जो वो प्रॉब्लम्स रीडिंग के अलावा भी फेस कर रहा है। एज इन वो बोलेगा कि मैम मुझे रीडिंग के अलावा मुझे ये चीजें मैम कुछ बोलती हैं तो मुझे वो समझ भी नहीं आता है। एज अ स्पेशल एजुकेटर आई नो, एज अ प्रोफेसर आई नो कि जब आप चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं तो हमें पता है कि आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। सो देयर इज प्रॉब्लम जहां पे आपको लगेगा कि ये चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, हर चीज को इन अ फ्लेक्सिबल वे पे उस बच्चे को समझाना स्टार्ट करूंगी, नॉट इन अ डीमोटिवेशन। आई विल एक्सप्लेन हिम कि दिस इज समथिंग विच इज मेनी ऑफ अस फेस। जब मैं भी छोटी थी आपकी तरह तो मुझे भी चीजों में कंफ्यूजन हुआ करती थी। सो मार्क द डिफरेंस कि आपको बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको एज एन मोटिवेशन के थ्रू यहाँ पे पढ़ाना है, राइट? एंड देन हमारे पास हम इस आईईपी को अकाउंटेबिलिटी टूल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी सेट सम गोल्स इन हियर, राइट? एज आई सेड कि बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरा अल्टीमेटली गोल हो जाता है कि पहले मुझे बच्चे को पढ़ना सिखाना है, तो ये मेरा एक गोल हो गया। सो we do have some long term and short term goals under the IEP. Let me describe you what is long term and then what is short term. So long term is something which is ईशान अवस्थी को अगर रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स से कि मैं ईशान अवस्थी को एटलीस्ट पूरे 6 महीने के अंदर इस बच्चे को मैं एटलीस्ट एक लाइन प्रॉपर तरीके से रीड करना सिखा दूंगी, राइट? एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल कि विद इन 3 मंथ्स मुझे इस बच्चे के सोशल एरिया के साथ काम करते करते, इसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते करते उसको एटलीस्ट जो वर्ड्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन समझानी है, राइट? So here's the difference between the short term goal and the long term goal which the IEPs follows. Otherwise हम इसको accountability tool क्यों बोलते हैं? Because it helps the student to meet his or her goals and expectation. What are the expectation? कि मेरा बच्चा अब चीजों को रीड करना सीख जाएगा, मेरा बच्चा अब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा, एंड जब वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे अपनी रीडिंग फ्लुएंसी भी आगे को बढ़ा लेगा, right? So this is something where the IEPs work in a flexible way, in a ability way, जहाँ पे बच्चे अपने आप को एकदम फ्रीली होके हर चीज पे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं, and where the special educator actually adapt the things according to child. So when I said according to child, इसमें क्या होगा कि हर बच्चे की एबिलिटीज अलग होती हैं। So when we say कि बच्चे की एबिलिटीज अलग है तो मे बी देयर इज चांसेस कि मेरी जो 40 स्ट्रेंथ की क्लास है उसमें से 10 स्ट्रेंथ जो है वो फटाफट से चीजों को रीड करके एंड कॉपी डाउन करना स्टार्ट कर देती है। अदर 10 जो है वो रीड करते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। एक अदर 10 जो है मेरे पास जो रेशियो है वो क्या करती है, वो रीड करने में ही चीजों को थोड़ा सा टाइम लगा देती है।
सो वो डिफरेंशिएट द 40% लाइक दिस, 40 चिल्ड्रन की जो भी स्ट्रेंथ है हम उसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। बट हेयर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे उस 40 के स्ट्रेंथ में मेरे पास जो स्पेशल नीड का चिल्ड्रन निकल कर आया है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की हेल्प की वजह से, उस पर मैं मेजरली फोकस करने के लिए क्या करती हूँ, उसके लिए एक अकाउंटेबल टूल बनाती हूँ जिसमें मुझे सबकी हेल्प भी चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे कि उसमें वो सबकी हेल्प हमें किस किस की चाहिए होती है। जो मैंने बात करी कि मुझे सबकी हेल्प चाहिए, दैट हेल्प इज कॉल्ड एज मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। Multidisciplinary team your includes your educators, your parents, your physiotherapists, your psychologists, your speech, and the language pathologist, right? So let's start with the special educator first. I hope you all know who is the special educator. A caretaker who actually thinks about the child with special needs, who actually focus the child with special needs, who actually focus that the person can be do or cannot do. राइट स्पेशल एजुकेटर को आप अगर आप एक ना जनरल टर्म अगर आप उनकी बात करेंगे तो दे आर लाइक जनरल एजुकेटर्स ओनली। जो आपके मैथ्स के टीचर हैं वो आपके साइंस के जो टीचर है, ऐसे ही हम स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने स्पेशल नीड्स चाइल्ड्स के बिहेवियर्स पे काम करते हैं, उनके एकेडमिक्स पे काम करते हैं, हम उनके लिए मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें किनका रोल है, आपके स्पेशल एजुकेटर्स का, राइट। तो स्पेशल एजुकेटर ही इज अ होल सोल पर्सन जो एक्चुअली में बच्चे के एकेडमिक से लेके सारे डोमेन पे काम कर सकता है, राइट। एंड व्हेन वी से सारे डोमेन, आई होप यू नो, first domain is cognitive, then physical, then we have emotional, and then we have social. These are the major domain which helps the child to develop their personality and develop their cognitive ability, right? So special educators take care of all these domain under the influence of the educators and the team. Let's come to the second person, who is the physiotherapist. Let's say there is a special child who needs some physical motor development. When we say the physical motor development, तो हमारे पास क्या होता है कि हमें physical motor development के लिए we do have two options, that is gross motor and fine motors. एक हम बच्चे का देखते हैं कि वो भाग कैसे पा रहा है, एक हम देखते हैं कि बच्चा काम कैसे कर पा रहा है। When we come to the ईशान अवस्थी, आपने देखा होगा कि उसकी पेंसिल होल्डिंग भी करेक्ट तरीके से नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? Because he has not developed his fine motor skills. आपको नर्सरी क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि आपको जब आप कर्सिव कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको सिखा दिया जाता है कि आपको इस पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, राइट। बट ड्यू टू सम लैकेज और आपको इस वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो यू विल लूज द इंटरेस्ट कि मुझे ये पेंसिल पकड़ के भी क्या करना है जब मुझे ये वर्ड ही समझ नहीं आ रहा है, राइट। सो उसके लिए वी नीड द फिजियोथेरेपिस्ट हु विल हेल्प अस कि हमें ये पेंसिल कैसे होल्ड करनी है आफ्टर द गाइडेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर। बिकॉज स्पेशल एजुकेटर ने अब ईशान अवस्थी के साथ वो इमोशनल कनेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, एंड वहां से जब उसने वो इमोशनल कनेक्ट बनाना स्टार्ट किया है तब क्या हुआ है, ईशान अवस्थी को धीरे 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 इंटरेस्ट आने लगा है कि वो इन सारी चीजों को अब आइडेंटिफाई कैसे करेगा, राइट। स्पेशल एजुकेटर्स की क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी उसे वर्ड आइडेंटिफाई कराने के लिए। लेट्स से कि यहाँ पे उसने पी की आइडेंटिफिकेशन करानी है। सो पहले हम क्या करेंगे, पी की प्रोनाउंसिएशन उसको कराना स्टार्ट करेंगे, दैट इज इन विच वी नीड स्पीच थेरेपिस्ट हु विल हेल्प हिम टू स्पीक पी, जहाँ पे आपके लिप्स क्लोज होते हैं, खुलते हैं, एंड देन यू साउंड द वर्ड पी, पा, राइट, जिसमें आपको ये फीलिंग आती है कि आप उस वर्ड को एक्चुअली बाय हार्ट बोल रहे हैं। जब हम पी को रिलेट करते हैं पा से, तो वहां पे आपको समझ आता है कि ये साउंड जो है वो पा का निकला है, वो पी का निकला है। तो लेट्स से कि मुझे ईशान को पी की आइडेंटिफिकेशन करानी है, तो फर्स्ट थिंग इज मैं उसको साउंड की आइडेंटिफिकेशन कराऊंगी। सेकेंड थिंग इज मैं उसको बोलूंगी जब हमने साउंड की आइडेंटिफिकेशन सुनी है तो वो हमने बोली कैसे है, दैट इज योर आर्टिकुलेशन, योर फेस आर्टिकुलेशन। आपने लिप्स को बंद करके एंड देन लिप्स को खोल के पी बोला है, राइट। एंड देन आप फिर यहाँ पे अब ये लिप्स को बंद करके लिप्स को बुलवाने की चीज किसकी आती है, आपकी स्पीच थेरेपिस्ट और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की, राइट। बोथ आर द सेम पर्सन जो आपकी हेल्प करते हैं इन योर इम्प्रूविंग योर स्पीच, राइट। तो जब आपने उस शब्द को बोलना सीख लिया, देन विल कम टू द मेन पार्ट कि अब आपको पी को पहचानना है। सो विल डू सम पजल्स, विल डू सम वर्ड्स जहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी कि दिस इज पी। मैं आपको पी काफी सारे फॉर्म्स में दिखाऊंगी जहाँ पे आप
एक आइडेंटिफिकेशन मान लेंगे कि दिस इज द वर्ड ऑफ पी, एंड ये इससे क्या होता है, पी फॉर पैरेट हमने बचपन में पढ़ा है, पी फॉर पैरिस, पी फॉर पैरेट, पी फॉर प्लम्बर, ये सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करी है, एक वर्ड के थ्रू, राइट। बट ईशान के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा बिकॉज ही डज नॉट नो कि पी लिखते कैसे हैं, पी को पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने उसके लिए धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज डेवलप करी अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर, जिसमें स्पेशल एजुकेटर ने किसकी हेल्प ली, आपके स्पीच पैथोलॉजिस्ट की, राइट। एंड देन विल कम टू दी अगेन फिजियोथेरेपिस्ट हु विल वर्क ऑन दी फाइन मोटर स्किल्स, जो ईशान को समझाएगा कि आपको कैसे यहाँ पे कैसे काम करना है इस पेंसिल को पकड़ने का, राइट। एंड देन द अदर टीम मेंबर वी हैव दैट इज occupational therapist. So occupational therapist is the person who actually works on the behavior of the child. As many of you have seen the movie जहाँ पे ईशान को इरिटेशन होने लग जाती थी जब उसको हॉस्टल ड्रॉप कर दिया था, जब उसको लगता था कि यहाँ पे चीजों को मैं बहुत लैग बिहाइंड करूँ, he feel frustrated, he feel demotivated, उसका ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं है उसके साथ काम करने के लिए, कोई भी नहीं है, and he shows some aggressive behavior. Like I mentioned, ADHD, he shows some aggressive behavior, जहाँ पे उसको क्या लगा कि अब जब उसके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो he does not want to talk to anyone, and वहाँ पे इसका behavior क्या था, aggressive, ना किसी की बात माननी, ना किसी की बात सुननी। तो ये actually आपका एक nature हो जाता है। जब आप इस नेगेटिव नेचर को अडाप्ट कर लेते हैं ना, देयर यू फील लाइक कि अब कोई भी नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, एंड मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, आई गेस ये चीजें मेरे को समझनी ही नहीं है, मुझे पी की आइडेंटिफिकेशन करनी ही नहीं है, मुझे ये सारी चीजें करके कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे होता है यू वेयर यू डेवलप द नेगेटिव बिहेवियर इन यू, एंड वेयर वी नीड द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो आपके इन बिहेवियर्स को ठीक करता है, जो आपको, ये चीज तो साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्चुअली बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, ही एक्चुअली ओनली फोकस्ड ऑन योर बिहेवियर पार्ट्स, कि आपको कैसे चीजों को अडेप्ट करना है, कैसे चीजों की एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, कैसे चीजों की आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, राइट। बिकॉज आपके जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, सडन आपको लगता है कि मुझे इस क्लास में बैठना नहीं है, मुझे इस क्लास से निकल जाना है, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देयर इज समथिंग जहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं टू मेक योर माइंड रिलैक्स, टू मेक योर सेंसेस रिलैक्स, जिसकी वजह से आप हाइपर फील ना करें। दे मेजरली फोकस ऑन योर हाइपरनेस। जैसे हमने बच्चे देखे हैं कि ओवर एग्रेसिव होकर क्लास में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, बिकॉज दे फेस सम इश्यूज लाइक कि उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है हर कोई उन्हें यहाँ पे जज कर रहा है, हर कोई यहाँ पे उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो दे फील लैग बिहाइंड, राइट। एंड उसको लगता है फिर मैं यहाँ बैठ के करूंगा ही क्या, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सो देयर इज समथिंग जहाँ पे आपके सेंसेस भी आपका साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उन सेंसेस, वो एक बारी जब आपके वो सेंसेस आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट लाइक आपको एग्रेसिव बिहेवियर करना है तो आपको क्या है, हार्श मोमेंट आ जाएगी, आपको लगेगा मैं किसी को मार भी सकता हूँ। तो देयर इज समथिंग जहाँ पे आपके सेंसेस अलाउड करते हैं, राइट। आपके सेंसेस आपको अलाउड कर रहे हैं कि आपको किसी को मारना है, या फिर आपको किसी के साथ बाइटिंग करनी है, या फिर आपको जो भी एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना है, उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके सेंसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्चुअली फोकस्ड ऑन योर सेंसेस पार्ट, जहाँ पे आपके जितने भी सेंसरी इश्यूज उठकर आते हैं वहां पे हम फोकस करते हैं, वहां पे हम आपको थेरेपी देते हैं। वी मेक यू फील काम, राइट, थेरेपिस्ट मेक यू फील काम, दे मेक यू फील रिलैक्स, एंड उसके बाद से हम इस चीज को डेली रिपीटेशन में लाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि द चाइल्ड विल चेंज हिज बिहेवियर। अगर वो चेंज अपना बिहेवियर कर लेगा तो उसके सेंसेस भी क्या होंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। After that, we have the another team member, that is psychologist. Psychologist is the actually main person after the special educator. Why so? Because he does some assessment on the child. What kind of assessment? That is something, अगर आपकी intelligence assessment करनी है, आपकी IQ measure करनी है, we need psychologist. हमें आपकी IQ measure क्यों करनी है, by the way? वो इसलिए करनी है ताकि हमें ये देखने को मिले कि जो आपकी एज है, क्या आपकी मेंटल एज वही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्कूल नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द जनरल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, वी मे मैच द मेंटल एज एंड योर chronological एज, विच इज योर फिजिकल एज एंड मेंटल एज, राइट। सो वी डू हैव द कंसेप्ट कि अगर बच्चा 5 साल का है तो 5 साल की समझ उसके अंदर आ जानी चाहिए,
एंड वो 5 साल की समझ को हम टेस्ट कैसे करेंगे, उस चीज को हम कैसे लेकर आएंगे, उसको हम ऐसे लेकर आएंगे जब हम 5 साल के बच्चे को बोलते हैं कि बेटा गेट अप, grab the chair, sit down and open your notebook. So this is something जहाँ पे उसने multiple instructions दी हैं and उसने आपके इस multiple instruction को कैसे understand किया and कैसे follow किया, right? अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को बोलते हो कि बेटा उठ के चेयर पे बैठो और वो वाली बुक को खोलो पेज नंबर 46, so this is very easy task for the 5-year child, right? But if the child is facing some special need problem, if the child is facing some disability like the LD, like he is facing some learning disabilities, तो learning disabilities में क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन सुनी, याद करने की कोशिश करी और हम वही भूल गए, where he faced some difficulties in understanding the instruction. आप जितने में बोल रहे हो बेटा उठो और चेयर पे बैठो और बुक खोलो, उसको उठना ही समझ नहीं आएगा अभी कि उसे उठना है और उसे चेयर ग्रैब करनी है. तो देयर इज समथिंग जहां पे हम मॉडिफिकेशंस करते हैं उसके हिसाब से कि हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्या कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं. एंड इस चीज को एक्चुअली में कौन मेजर कर रहा है, आपके साइकोलॉजिस्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका आईक्यू टेस्ट लिया है एंड देन आईक्यू टेस्ट के बाद वो आपको चीजें बताते हैं कि आपका आईक्यू आपकी मेंटल एज के हिसाब से है या नहीं है. इफ नॉट देन व्हाट कैन वी डू, हम वापस से जाएंगे आपके स्पेशल एजुकेटर के पास कि दीज आर दी सिम्टम्स, दीज आर दी असेसमेंट, जो इस असेसमेंट रिजल्ट जो मैंने देखा है बच्चे के अंदर अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट टूल इंटेलिजेंस टेस्ट के हिसाब से बच्चा यहाँ यहाँ लैक कर गया है. नाउ द स्पेशल एजुकेटर्स प्लेज द रोल ओवर हियर. वो क्या करेंगे, वो अपने डिसेबिलिटीज के असेसमेंट टूल्स को बच्चे पे असेस करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ही विल आस्क कि बच्चे में आपने क्या क्या चेंजेस देखे. लेट्स से साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि मैंने 3 से 4 सिटिंग में बच्चे के अंदर चेंजेस, मेजरली चेंजेस देखे हैं बिहेवियर में. बच्चा जो है वो काफी जगह पे हाइपर दिखाता है अपने आप को, काफी जगह पे नम दिखाता है. सो दीज आर दी सिम्टम्स व्हिच द स्पेशल एजुकेटर्स ऑब्वियसली नो कि ये सिम्टम्स जो है वो एक ADHD के बच्चे में आ सकता है. ओके, सो अगर ये ADHD के बच्चे में आ गया तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. आप हाइपर कैसे हो गए हैं, राइट? अगर आप हाइपर हो गए हैं तो आप हाइपर जो नेचर आपने डेवलप कर लिया है वो क्यों किया है. तो देयर इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर द काउंसलिंग पार्ट, जहां पे हम किससे बात करते हैं, पेरेंट्स से. बिकॉज बच्चा अगर आपका बॉर्न हाइपर है तो वो कैसे चीजों को हैंडल करेगा, वो तो फिर हमें समझ आता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड बॉर्न हाइपर है, तो वो मतलब उसको अपनी सेंसेस की अडेप्टेबिलिटी नहीं आ पाई, वो अपने सेंसेस को नहीं समझ पाया, राइट? बट अगर बच्चे को थोड़े टाइम बाद ये हाइपर एक्टिव बिहेवियर आता है, थोड़ा टाइम बाद उसको लगता है कि नहीं मैं चीजों को नहीं कर पा रही हूँ या फिर क्या है क्या नहीं है, तब वहां पे हम साइकोलॉजिस्ट को लेकर आते हैं जहां पे वो बिहेवियर को मेजर करते हैं एंड देन हम स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं कि अब आप देखो कि ये कौन सी डिसेबिलिटी में आता है कौन सी में नहीं, राइट? तो ये सारी चीजें हुई जहां पे हमने क्या बोला कि स्पेशल एजुकेटर ने एक IEP प्लान करी. लेट्स से कि उसने रिजल्ट दिया अपनी असेसमेंट के बाद कि बच्चे को LD है विच इज डिस्लेक्सिक, राइट? तो हमने इस पूरी टीम के साथ डिस्कस किया कि डिस्लेक्सिक बच्चे के साथ क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, कैसे उसको राइटिंग में हेल्प करनी चाहिए, कैसे उसे रीडिंग में हेल्प करनी चाहिए. रीडिंग में मेरे मेजरली हेल्प करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट, राइटिंग में मैं करूंगी, फिजियोथेरेपिस्ट करेगा एंड देन पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको काउंसिल करेंगे, आपके घर पे टेक केयर करेंगे. जो भी टास्क आपने आज स्कूल में किया है वो कैसे आप यहाँ पे करेंगे, घर पे कैसे करेंगे, रिपीट कैसे करेंगे, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे. These all are the things can be happen with the help of IEP only, right? Then we have the importance of IEP, which directly says that is written plan that spells out the specific types of help which the student want, right? Or which the student will get. Goal chosen according to the student interest level and the level of performance of his strength. So when we talk about the level of performance, his strength and the interest, as a special educator, as a special teacher, what you have to do is you have to find out the strength area and the weakness area of the child, जिससे कि हम बच्चों को एक reinforcement provide करते हैं कि अगर वो जितना अच्छा होके काम करेगा, we'll give him the positive reinforcement. अगर बच्चा अभी भी हाइपर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के हेल्प से भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, विल गिव हिम द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव के लिए भी आपको क्या करना है, उसकी पॉजिटिव चीजों को साथ में लेकर आना है कि उसको, अगर आपको पता है कि मेरे ईशान अवस्थी को फुटबॉल खेलना या पेंटिंग करना बहुत पसंद है, सो व्हाट यू विल गिव हिम एज अ ब्रीफ, एज अ ब्राइब,
आप उसे क्या देंगे? आप बोलेंगे कि बेटा अगर हम ये टास्क आज कर लेते हैं, अगर आप मुझे पी की आइडेंटिफिकेशन इस पूरी वर्कशीट में करके दिखा देते हो, तो विल गो फॉर द पेंटिंग, राइट? दैट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो आप देते हैं, राइट? देन व्हाट इज इवैल्यूएशन डन टाइमली? हम आईएपी में हर महीने, हर तीसरे महीने में ये इवैल्यूएट करते हैं कि वेयर इज द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, कहाँ पे बच्चा कितना काम कर पा रहा है। मैंने अगर उसको पी की आइडेंटिफिकेशन या डी की आइडेंटिफिकेशन करने सिखाई है, तो विल ही बी एबल टू डू दैट आफ्टर द मंथ्स ऑल्सो? क्या मैं अगर उसे बोलती हूँ कि पी फॉर पैरेट है, तो पी फॉर पैरेट मेरे पैरेट में कहाँ लिखा है? दैट इज द इवैल्यूएशन पार्ट विच इज डन बाय द स्पेशल एजुकेटर, right, after making the IEP. Then we have IEP process, कि हम IEP को एक्चुअली प्लान कैसे करते हैं, हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान एंड प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान करते हैं, सो दैट वी कैन वर्क ऑन द गोल ऑफ द चाइल्ड. सो फर्स्ट वन इज असेसमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि मैम दीज सिम्टम्स आई कैन नोट ऑब्जर्व इन द चाइल्ड, यू प्लीज डू लेट मी नो कि ये कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर आता है, कौन सी नहीं. तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट, आफ्टर द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आते हैं, अगर मेरे पास वो एलडी के रिजल्ट निकल कर आए हैं या एडीएचडी के रिजल्ट निकल कर आए हैं, तो आई विल टेक दैट असेसमेंट टूल टू दैट चाइल्ड. LD के लिए I will take DTLD, DTRD, right? That is the diagnostic test for the learning disability, जहाँ पे मैं बच्चे के reading, writing and understanding part, that is comprehension part पे focus करूंगी and वहाँ पे देखूंगी कि बच्चे का understanding level कितना है, कितना नहीं, right? And then we have the current level of functioning. बच्चे के अंदर identification skill नहीं है, that is the current functioning of the child. कि बच्चा अभी मेरा आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पा रहा है, सो आई नीड टू वर्क विद हिम विद द जीरो, विद द इनिशियल पार्ट, राइट? एंड देन विल चूज द टास्क बच्चे की इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के हिसाब से. मेरे को पता है कि बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो आई विल चूज द टास्क लाइक द पेंटिंग थिंग्स ओनली. मैं उसको पेंटिंग से ही पहले पी की शुरुआत कराने वाली हूँ. मैं उसको जितनी भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो पेंटिंग या फिर उसके अलग इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से देने वाली हूँ, राइट? एंड देन another thing is annual goal and the short term goals, which I have already explained you, that is long term goal and the short goal. And then we have the evaluation part, that is आपने बच्चे को assess किया कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितनी नहीं. And then we have the replan, that is something called कि अगर बच्चे ने इस पूरी प्रोग्रेशन में अपना पॉजिटिव पार्ट शो किया है, he has shown some positive things, positive result, positive improvement, then we'll replan the things, will complicate the task. हम थोड़ा सा उसको टास्क को जो सिमिलर वे में, जो आपका सिंपलर वे में था, हम उसको क्या करेंगे, अब एक लेवल थोड़ा सा टास्क बढ़ा देंगे. That is comes under replan. And next is who needs IEP? What kind of disabilities, what kinds of special children need IEP, what kind of special children need individualized education program, because every special child deserves to be in special school or the inclusive school. When we say the inclusive school, तो वो आते हैं आपके रेगुलर स्कूल. तो रेगुलर स्कूल अब कोई भी आपके स्पेशल चाइल्ड का एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव द ब्लेस्ड पॉलिसी, दैट इज जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, जहाँ पे आपका कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आपका स्पेशल एबल चाइल्ड है, चाहे वो आपका पुअर चाइल्ड है, इन सब के एडमिशंस को कोई भी मना नहीं कर सकता. सो वी ऑब्वियसली नीड सम केयर टेकर फॉर दैट, एंड फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन वी डू हैव द साइकोलॉजिस्ट एंड द स्पेशल एजुकेटर्स, राइट? सो as I mentioned, attention deficit hyper disorder, learning disabilities, physical disabilities, autism, speech language impairment, hearing impairment, visual impairment and developmental delay. These all are the special needs things. These all are the special disabilities which needs to be prepared by an IEP, जहाँ पे आपके इन सारे कैटेगरीज के बच्चे को हमें IEP प्लान करनी होती है. अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट का चाइल्ड है तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर को लेकर आना है, अपने ऑडियो विजुअल टास्क पे काम करना है. इन सब के लिए अगर मेरा VI का बच्चा है तो ही कैन नॉट सी द थिंग,
तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशंस करनी है, दैट इज समथिंग कि मैं बच्चे को पूरा ऑडियो मोड पे ले जाऊं, टेक्टाइल मोड पे ले जाऊं। आफ्टर द विजुअल इम्पेयरमेंट जब मैं बच्चे को पूरा टेक्टाइल मोड या फिर ऑडियो विजुअल मोड पे ले जाऊंगी, जहाँ पे बच्चे ने जहाँ पे अपनी प्रोग्रेशन स्टार्ट करी है लर्निंग की टेक्टाइल मोड पे या ऑडियो विजुअल मोड पे, तो वहां से बच्चा क्या होगा विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कि मैंने उसके लिए कौन सी मॉडिफिकेशंस को डिजाइन किया, मैंने उसके लिए इक्विपमेंट्स को डिजाइन किया, मैंने उसके लिए फिजिकल स्ट्रक्चर में लेकर आया, ओरिएंटेशन मोबिलिटीज में मैं लेकर आई। Then we'll come to the developmental delay disabled child. When we say developmental disabled child, that is something कि जहाँ पे हमने अभी सारे मोटर्स के बारे में बात करी थी, डोमेन्स के बारे में बात करी थी, that is physical, social, emotional and language, right? तो इन सारे एरियाज में बच्चा क्या हुआ है आपका डिलेड हो गया है। As per the general children, अगर बच्चा मेरा 12 साल का है तो 12 साल की फिजिकल एबिलिटीज क्या होती है, that he can run, he can jump और he can actually skip the things also, skip the roping। बट मुझे दिख रहा है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं है, he so slows in like he shows some lackage in the physical abilities। अभी वो 12 साल का बच्चा मुझे सिर्फ 9 साल की चीजें करके दिखा रहा है, he cannot cycle the bicycle by his own, राइट वो साइकिल नहीं चला रहा है अभी, जो कि 12 साल का बच्चा चला सकता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द डेवलपमेंटल डिले, जो मैंने आपको अभी एक एरिया का बताया, दैट इज फिजिकल का, राइट। देन ऑल्सो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिले होता है, दैट इज बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कॉम्प्रिहेंशन लेवल में, कि बच्चे ने अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है वो उसका मेंटल एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर बच्चा मेरा डेवलपमेंटल डिले का है, अगर उसका कॉग्निटिव डिले हो रहा है, डेवलपमेंट उसकी जो कॉग्निटिव की है वो डिले हो रही है, तो ही विल शो सम सिम्टम्स, जिसके लिए मैं क्या काम करूंगी, उसके लिए आईईपी प्लान करूंगी। आईईपी कैसे प्लान करूंगी, उसमें मैं उसके लिए मॉडिफिकेशंस रखूंगी। मॉडिफिकेशंस में मैं क्या लेकर आऊंगी, लेट्स से कि मेरा बच्चा सेकेंड क्लास में आ गया एंड हिज एज ग्रुप इज 6 years, राइट, बट उसका 6 year के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलप नहीं है, बट मुझे क्या करना है, आई हैव द जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, तो आई विल अगेन टेक द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर, जहां पे मैं बोलूंगी कि मैम आप मुझे बताइए कि मुझे इस बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे कैसे काम करना चाहिए। तो अंडर दैट मॉडिफिकेशन आई विल प्रोवाइड द जनरल टीचर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई विल प्रोवाइड सम स्ट्रेटजीज टू हर। स्ट्रेटजीज कैन बी एनीथिंग। मैं बोल सकती हूँ कि मैम जब आप बच्चों को टास्क करा रही होंगी तो ट्राई कीजिए कि आप उसको सोशल स्टोरीज के थ्रू समझाना शुरू करें, राइट। आप ट्राई कीजिए कि अगर आज आपको पूरी स्टोरी लेनी है तो आप ट्राई कीजिए कि आप पूरी ही क्लास में उस स्टोरी को पूरी ना समझा के उसका एक पैराग्राफ समझाएं एंड उसको ऑडियो विजुअल मोड पे ले जाएं, बिकॉज यहाँ पे मेरे बच्चे के अदर सेंसेस भी काम करने स्टार्ट कर देंगे। ही कैन लिसन द थिंग, he can see the things and also he can feel the things जब हम उसको exactly करके दिखाएंगे, right? So this is something जो हम developmental delay बच्चे के लिए IEP डन करेंगे, प्लान करेंगे अपने गोल्स के थ्रू, अपने स्ट्रैटेजीज के थ्रू, एंड देन हम उसको इवैल्यूएट भी करेंगे। देन वी हैव द ऑटिज्म। ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर जहाँ पे आपके बच्चे के सेंसरी इश्यूज आते हैं, बिहेवियर इश्यूज आते हैं। अगेन इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आपके स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। तो जैसे ही स्ट्रैटेजीज हमने इन सारे डिसेबिलिटीज के लिए प्लान करी है, वैसे ही हम ऑटिज्म के लिए भी करेंगे। एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज इज वन ऑफ द डिसेबिलिटीज विच यू कैन सी बाय योर आईज, विच डज नॉट हाइड फ्रॉम एनीवन। कैसे? क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके साथ एक सेरेब्रल पैलिसी का बच्चा है हु कैन नॉट वॉक, राइट, सो दैट कम्स अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी। बच्चे को वो चलने के लिए बाउंडेड कर देता है। अंडर दैट थिंग कि हम उसमें आईईपी में क्या करने वाले हैं, हम उसमें ये करने वाले हैं कि हम जो बच्चे के गोल्स लेने वाले हैं, वो हम जो उसमें गोल्स लेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी का अगर बच्चा आता है एंड ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट राइड प्रॉपरली, सो वी विल प्रोवाइड हिम द टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। जैसे कि हम यहाँ पे बच्चे को पूरा टेक्नोलॉजी मोड पे ले आएंगे। वी डू हैव टेक्स्ट टू स्पीच थिंग्स इन आवर फोन, राइट, जो हम उस बच्चे के लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए लेकर आएंगे। बच्चा बोलेगा एंड वहां पे जो टेक्स्ट है वो आपके अपने आप आ जाएगा, राइट। बच्चा यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करेगा तो विल प्रोवाइड हिम द कीबोर्ड मेथड, टच मेथड, जहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत अपना टच करके चीजों को रख पाए। अगेन वी हैव दी स्पीच टू टेक्स्ट बुक, जहाँ पे हमारा क्या होता है कि आपके अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, यू जस्ट प्रेस दैट सिंबल एंड वहां पे क्या होता है, आपको वो स्पीच जो है, वो चीज जो है वो आप इंडिकेट कर देते हैं।
तो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज को भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उस चीज को प्लान कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज को रख सकते हैं, दैट all the things will comes under the IEP, Individualized Education Program. I hope you all got the things कि हम IEP में क्या करते हैं, क्या नहीं, हम कैसे स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं, कैसे हम गोल डिसाइड करते हैं बच्चे के लिए, ये सारी चीजें हम IEP में करते हैं. I hope you all got the things. Thank you.